Good morning, everyone. Yes, how are you? Hope all of you are fine and ready for next discussion on Delhi Sultan. Clear? So, have you read from the book that all the topic that we have discussed about this Delhi Sultanate? Okay, good. So now we from this Delhi Sultanate. So what we have discussed till now, we have discussed about various rulers of Delhi. Okay, who were the various rulers of Delhi, and then from where we find out these Delhi Sultans. Okay, we find out about these Delhi Sultans from Tariq, inscriptions, coins, okay, architecture. So there are various sources from where we find out about these Delhi Sultan. Then we got some information about the authors of Tariq, what they used to give advice also to the king. We read about Circle of Justice. We read about Razia Sultan. Okay, we discussed about this. Then we have started about the expansion of Delhi Sultanate from garrison town to empire. That how Delhi Sultanate it got expanded from a garrison town to empire. Earlier, Delhi Sultanate was just a garrison town. It started control some garrison town, then to internal frontier, and to second is external frontier. So a set of campaigns it started. In internal frontier, first it started controlling over the hinterland, that land adjacent to the city or port. So first it started controlling the hinterlands in internal frontier, and then in external frontier it sent military campaigns, military expeditions to the southern region. Okay, so in this way this Delhi Sultanate got expanded. So this was the expansion of Delhi Sultanate. We also make it clear with this map. So during the Muhammad bin Tughlaq reign, तो Muhammad bin Tughlaq के reign में this all military expeditions, ठीक है, so it were reached to its highest. तो military Muhammad bin Tughlaq के time period में जो दिल्ली सल्तनत का reign था, it reached to its highest. तो highest जो area था, large area था, was under the control of Delhi Sultans. So the armies of Delhi Sultan it marched towards a large part of subcontinents. तो ये जो हमारा प्रॉपर ये सब कॉन्टिनेंट है पूरा, तो इस सब कॉन्टिनेंट के बहुत लार्ज एरिया तक जो आर्मीज थी मोहम्मद बिन तुगलक की, उन्होंने मार्च किया. ठीक है, दे मार्च टुवर्ड्स एंड दे डिफीटेड ऑल. और इन सभी जहाँ पे जो आर्मीज थी, ठीक है, डिफरेंट एरियाज जो थे यहाँ पे आर्मीज थी, उनको डिफीट किया, उनके एरियाज पे अपना कंट्रोल किया. ठीक है, दे डिफीटेड ऑल द आर्मीज यहाँ पे. सो दे पहले तो उन्होंने इंटरनल फ्रंटियर पे गैरिसन टाउन्स को कंट्रोल किया. देन टू द साउथ दे सेंड आल्सो मिलिट्री एक्सपेडिशंस. और मिलिट्री एक्सपेडिशन जब यहाँ पे करते थे, दे कंट्रोल और द हॉर्सेस, स्लेव्स, और जो भी वहां पे उनको प्रीशियस मेटल्स मिलता था, दे कैरिड अवे विद देम. ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया. दे डिफीटेड द राइवल आर्मीज एंड सीज द सिटीज. और इन सिटीज के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया. दे डिफीट देन सुल्तानत आल्सो कलेक्टेड टैक्सेस. और उन्होंने यहाँ से टैक्स भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है, सो उन्होंने यहाँ से जो टैक्स थे वो भी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया. और इन रिटर्न बदले में जो जस्टिस थे, एज ए जो डिसीजन देना था, अगर किसी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसका डिसीजन देना है, तो वो जस्टिस जो थे, न्याय देना भी उन्होंने शुरू कर दिया. क्लियर? तो इस तरह जो दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन थी, इट एक्सपेंडेड फ्रॉम ए गैरिसन टाउन टू एम्पायर. तो प्रॉपर एम्पायर जो था, अर्लियर ये सिर्फ क्या थी, एक किंगडम थी. ठीक है, किंगडम थी, लेकिन स्लोली
ये क्या, इट एक्सपैंडेड इनटू अ एम्पायर, तो बहुत बड़ा ये एम्पायर बन गई। क्लियर? देन आफ्टर बिकमिंग द सुल्तान, एवरी सुल्तान, जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, ऑल दे ट्राइड फॉर बिल्डिंग वेरियस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स, ठीक है, हाउ फॉर एज, जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था कि देन द किंग्स, न्यू किंग्स, दे यूज्ड टू मेक टेम्पल्स इन द रीजन्स, so in the same way king sultan they used to make mosques in the region. So first this is Quwat al-Islam mosque, ठीक है, Quwat al-Islam mosque which is given, so यहाँ mosque और फिर ये minaret, it was built during the last decade of 12th century and this was congregational mosque on which the all prayers are being offered on Friday, जहाँ पे फ्राइडे को prayers मॉस्क में जो prayers होती है मुस्लिम्स प्रेयर करते हैं, तो जो प्रेयर फ्राइडे को होती है जहाँ पे सारे इकट्ठे होते हैं तो वो कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क होती है। तो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान, और ये दिल्ली का जो ओल्ड सिटी था कुहना, वहां पे इट हैज बीन बिल्ट, ओल्ड जो ओल्ड दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, तो वहां पे ये मॉस्क बनी हुई है। तो इट वाज स्टार्टिंग जो की थी इट वाज स्टार्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड लेटर ऑन इट वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो these sultans they have got, तो ये कुतुब मीनार, all of you know about this, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि ये कुवात अल इस्लाम मॉस्क बनी हुई है एंड दिस इज कुतुब मीनार। उसके बाद यहाँ पे और मॉस्क आपकी बुक में बनी हुई है, ठीक है, दिस इज बेगमपुरी मॉस्क, तो बेगमपुरी मॉस्क बनी हुई है। अब ये बेगमपुरी मॉस्क जो थी ये मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में बनाई गई थी, और जो कि जहांपना जो सिटी है दिल्ली, हमने कहा ना कि दिल्ली सुल्तान ने कुछ नए सिटीज जो थे वो बनवाए थे, तो ये जहांपना जो है ये जहांपना के सिटी में ये बेगमपुरी मॉस्क बनवाई गई थी। और मॉस्क क्या होता है, जहां पर कि मुस्लिम जो है वो अपनी प्रेयर्स को करते हैं, ठीक है। एज the Hindus they move to the temple, ठीक है, shift to the gurudwaras, then Muslims they move to masjid or mosque for their offering their prayers, or congregational mosque where the all the prayers they are being offered on the Friday, ठीक है। और वहां पे उनका जो लीडर होता है that is इमाम, जो इमाम लीडर होता है, और वो सारी रिचुअल्स को परफॉर्म करवाता है और डिलीवर्स द सरमन ऑल्सो। और सरमन होता है रिलीजियस स्पीच, जो भी रिलीजियस वर्डिंग्स हैं, सारे लोग वहां पे रिलीजियस वर्डिंग सुनने जाते हैं, तो वो जो वर्डिंग्स है वो इमाम ही डिलीवर करता है। और जब वो प्रेयर करते हैं मुस्लिम, तो दे स्टैंड फेसिंग मक्का, तो मक्का की तरफ वो फेस करते हैं। इंडिया में, हमारे इंडिया में अगर हम हैं तो मक्का वेस्ट साइड है, ठीक है, अरेबिया जो है कंट्री वो हम इंडिया की वेस्ट साइड है, तो वहां पे मक्का है। तो इंडिया जो इंडियंस, अगर हम इंडिया में हैं तो अगर हम ऑफर कर रहे हैं नमाज, तो वी विल फेस टुवर्ड्स मक्का टू द वेस्ट, ठीक है, जिसको कि किबला कहा जाता है। तो देयर आर मेनी जो दिल्ली सुल्तान्स दे यूज्ड टू गॉट कंस्ट्रक्टेड दीज वेरियस मॉस्क्यूज, ठीक है, ये और मॉस्क्यूज आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है। सो फर्स्ट दिस इज द मोथ की मस्जिद, ठीक है, जो कि सिकंदर लोदी ने बनवाई थी। देन दिस इज मॉस्क ऑफ जमाली, ठीक है, कमाली। सो इस तरह डिफरेंट जो मुस्लिम रूलर्स थे दे गॉट दीज मॉस्क्यूज कंस्ट्रक्टेड टू क्लेम एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम, कि उन्होंने ये क्यों इतनी सारी मॉस्क्यूज बनवाई, कि ये शो करने के लिए कि वी आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, कि हम जो है इस्लाम के प्रोटेक्टर्स हैं, मुस्लिम्स के प्रोटेक्टर हैं, और हम सभी जो हैं एक बिलीवर्स, हम सभी एक ही कम्युनिटी को बिलीव करते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे मुस्लिम रूलर से अलग अलग एरिया से आए थे, अफगान, ईरान, ठीक है, जो आजकल अफगान, ईरान, इराक के एरियाज हैं, तो अलग अलग एरियाज से आए थे। तो इन सभी एरियाज से बिकॉज दे केम फ्रॉम डिफरेंट ऑफ वेराइटी, तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड से आए थे, उन सब में तो एक कम्युनिटी की जो सेंस थी वो डेवलप करने के लिए तो दे इस तरह की मॉस्क्यूज उन्होंने बनवानी शुरू की, ठीक है, कि री इन्फोर्स कर सके वो आइडिया
किसका आइडिया? कम्युनिटी का, कि हम सभी एक ही कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। तो उस आइडिया को रीइंफोर्स करने के लिए उन्होंने इतनी सारी मॉस्क्यूज बनवाई। क्लियर? तो दिस इज कि हाउ दिल्ली सल्तनत गॉट एक्सपेंडेड and various sultan they got constructed various mosques to demonstrate that they are the protector of Islam and Muslims. ठीक है? So like this they performed various their powers and they use their power, they use collected taxes also, ठीक है, and they dispensed justice also, उसके बदले में जस्टिस भी करते थे, ठीक है, and they control all these vast territories. अब how they control all these vast territories, ठीक है, इतनी सारी territories पे उन्होंने कंट्रोल कैसे किया? So now we will have a closer look, ठीक है, अब क्लोजर लुक हम किस पे लेंगे और डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। कहाँ करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर खलजीज एंड तुगलक, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन सबको पता ही है, वी हैव डिस्कस मेनी टाइम कि जो गवर्नमेंट है कि हाउ इट इज एडमिनिस्ट्रिंग इट्स टेरिटरी, जो भी रूलर है कि वो अपनी टेरिटरी को एडमिनिस्टर कैसे कर रहा है, उस पर रूल कैसे कर रहा है, किस तरह वो रूल कर रहा है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन कि जहां पे उसने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया है उसको वो कैसे बना के रख रहा है और उसको एक्सपैंड कैसे कर रहा है, ठीक है। एंड कंसोलिडेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन, किसके टाइम में कंसोलिडेशन? अंडर खलजीज एंड तुगलक, ठीक है, जो खलजीज और तुगलक थे, ठीक है। तो इनके टाइम में किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो एक्सपैंड किया। अब कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम, जैसे कि हमने देखा कि बहुत पूरे सदर्न रीजन तक जो दिल्ली सुल्तान थे इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड कर लिया था, ठीक है। अब यस बच्चे, मक्का, तो मक्का है बच्चे जो मुस्लिम्स का रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। जितने भी मुस्लिम्स हैं तो मक्का इज द मोस्ट रिलीजियस प्लेस जिसकी कि वो प्रेयर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हिंदूज हैं तो वो हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार और बहुत सारे प्लेसेस, तो वो उनका एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। तो वो वैसे ही मक्का जो है वो रिलीजियस प्लेस है मुस्लिम्स का। क्लियर? ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन में कि जो दिल्ली सुल्तान थे अब उन्होंने दे हैव कंट्रोल्ड वास्ट टेरिटरी, उन्होंने वास्ट टेरिटरी पे कंट्रोल कर लिया एंड नाउ दे आर एडमिनिस्ट्रिंग दिस टेरिटरी। अब उस टेरिटरी को उन्होंने एडमिनिस्टर कैसे करना है, पूरा देखना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है। सो दिस कंसोलिडेशन ऑफ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स, ठीक है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में क्या था कि सुल्तान हैज अपॉइंटेड डिफरेंट समंतास, ठीक है, अलग अलग एरियाज जिसमें समंतास को अपॉइंट कर दिया था। तो समंतास क्या करते थे? समंतास कंट्रोल करते थे टेरिटरी को, सबसे ऊपर किंग है, फिर समंत है ना। तो इसी तरह समंत, तो अब दिल्ली सुल्तान ने डिफरेंट गवर्नर्स को अपॉइंट किया, तो नाम काम वही है, नाम चेंज हो गया है, ठीक है, ओनली द नेम इज चेंज। सो नेम क्या हो गया? दे हैव अपॉइंटेड वेरियस एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड, जो वहां पे चीफटन थे, जैसे सामंत को किसको अपॉइंट कर देते थे कि जो भी अमीर वहां पे रिच पीपल होता था उसको सामंत बना देते थे। लेकिन इन सुल्तान ने ऐसे नहीं किया कि जो भी वहां की रिच फैमिलीज थी उसको ऐसे सामंत या गवर्नर नहीं बना दिया। उन्होंने क्या किया? दे रिलायबल उन्होंने गवर्नर अपॉइंट करने की कोशिश की। कैसे की? उनके जो स्पेशल कुछ उनको लगता था कि ये कैपेबल है, ये हमारा जो भी उनका गुलाम होता था, ठीक है, क्योंकि पहले वो जहां पर भी अटैक करते थे वहां से लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे, ठीक है, और उन्हीं गुलाम को वो और ट्रेनिंग देते थे और वो गुलाम उन्हें लगता था कि हमारे लिए जो है वो बड़े, हम कह सकते हैं कि रिलायबल हैं, ऑनेस्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह के गुलाम को वो वहां का गवर्नर बनाते थे, ठीक है। ऐसे ही किसी भी एरिस्टोक्रेट या नोबल्स को वो गवर्नर नहीं बनाते थे। और जैसे कि सच एज इल्तुतमिश ने क्या किया था? ही फेवर्ड स्पेशल स्लेव्स, जो उसके स्पेशल स्लेव्स होते थे जिनको कि ही परचेज्ड
जो परचेज फॉर मिलिट्री सर्विस, या फिर उन स्लेव्स को वो मिलिट्री सर्विस, वो उन्हें मिलिट्री सर्विस देते हैं तो उनको परचेज कर लेता था, ठीक है। सो दे वर कॉल्ड बंदागन इन पर्शियन, तो पर्शियन लैंग्वेज में उनको बंदागन कहा जाता था, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं जो इल्तुतमिश थी, ठीक है, इल्तुतमिश जो दिल्ली सुल्तान था। आई होप कि ठीक है, तो ये हम अभी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो था इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने किसको अपॉइंट किया, जो गवर्नर्स, और गवर्नर्स का नाम उसने क्या था, बंदागन इन पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। गवर्नर्स ही हैं जो उसने अपॉइंट की हैं, लेकिन पर्शियन लैंग्वेज में उनको क्या कहा जाता है, बंदागन। और बंदागन कौन होते थे, स्लेव, ठीक है। They were carefully trained men, some of most important political offices in the kingdom. और ये जो भी बंदगन होते थे प्रॉपरली इनको ट्रेन किया जाता था, ठीक है, ट्रेनिंग मिली होती थी पूरी। Since they were totally dependent on masters and Sultan could trust and rely upon them, ठीक है। एक तो ये सुल्तान के स्लेव थे, ठीक है, उसके गुलाम थे, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई थी, ठीक है, स्लेव भी थे, ट्रेंड भी थे, उनको ट्रेनिंग भी मिली हुई थी, लॉयल भी थे, तो सुल्तान इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता था, ठीक है, सुल्तान ट्रस्ट कर सकता था इनके ऊपर। सो दे वर डिपेंडेंट, और किंग के ऊपर डिपेंडेंट भी थे, ठीक है, कि कोई भी उनको जरूरत थी या कुछ भी उनको अगर कुछ सलाह लेनी होती थी, एडवाइस, तो वो किंग के पास ही, सुल्तान के पास ही जाते थे। सो दीज बंदागन, और ये हमने क्या कहा कि ये कौन थे, गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर को पर्शियन लैंग्वेज में वैसे बंदागन जो स्लेव होते हैं, स्लेव को बंदागन कहा जाता है, ठीक है, जो कि उसने वहां के गवर्नर अपॉइंट किए थे, क्लियर। और इनको ट्रेनिंग हो गई, ये स्लेव भी हैं, ट्रेन भी हैं, लॉयल भी हैं, और डिपेंडेंट भी हैं टू द सुल्तान, ठीक है। अब ये हमें एक रिटर्न तारीख में ही इन स्लेव्स के ऊपर लाइंस लिखी मिलती हैं कि जो सुल्तान था वो अपने बेटे से ज्यादा इन स्लेव के ऊपर जो था वो विश्वास करता था, ठीक है, क्योंकि जो सुल्तान के सन होते थे तो उन सन से भी ज्यादा इन स्लेव्स के ऊपर वो विश्वास करता था, क्लियर। और इसी तरह जो खलजी और तुगलक, ठीक है, ये खलजी और तुगलक डायनेस्टी थी, उन्होंने भी यही जो उनकी बन गई थी एक परंपरा, उसको कंटिन्यू रखा। इन्होंने ये बंदागन की जो थी उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा। उन्होंने भी अपने अंडर जो थे वो जब गवर्नर अपॉइंट किए, खलजी और तुगलक दोनों ने, ठीक है, तो उन्होंने भी बंदागन अपॉइंट किए अपने अंडर, जिस तरह इल्तुतमिश ने किए थे उसी तरह खलजीज ने भी किए, तुगलक्स ने भी किए, ठीक है। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, बंदागन्स, बंदागन्स क्या थे, डिपेंडेंट थे, तो क्लाइंट कौन होते हैं, जो इन बंदागन्स के और ऊपर, जैसे और भी जो भी लोग थे किंग के ऊपर डिपेंड थे, सिर्फ पहले बंदागन बन गए हैं, और भी बहुत से लोग थे जो इस किंग के ऊपर डिपेंडेंट थे, जो राजा की अंडर प्रोटेक्शन में थे, राजा उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, ठीक है। सो उनको भी कई बार जो था वो गवर्नर बना दिया जाता था। सो खलजी एंड तुगलक दे कंटिन्यू टू यूज बंदागन, रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, ठीक है, जो भी हम्बल बर्थ की, हो सकता है जरूरी है कि वो बहुत अमीर फैमिलीज के हों, ठीक है, हो सकता है कि वो अमीर फैमिली के ना भी हो, फिर भी उनको गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता था, ठीक है। who were often their clients to high political positions, they were appointed as generals और governors, उनको जनरल और गवर्नर बना दिया जाता था। they also introduced element of political instability, ठीक है। अब इसमें political instability कैसे आई वो हम डिस्कस करते हैं। पहले जैसे कि ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक की, जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक है, इसके अगर हम ऑफिशियल्स की बात करें, जो कि इसने डिफरेंट गवर्नर्स या जनरल्स अपॉइंट किए थे, तो ये सेम ही थे, दोनों ही बंदागन
को अपॉइंट करते थे। तो जो गवर्नर जनरल मोहम्मद तुगलक ने अपॉइंट किए थे, तो उसमें जैसे आपकी बुक में भी बताया गया है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज कुमार वाइन डिस्टिलर, देन फिरोज हाजिम बार्बर, कि कोई जो वाइन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कि को वो है, कोई बार्बर है, ठीक है, कोई मंग का तबाक, एक कुक था, 2 गार्डनर थे, देन लाधा पीरा हाई। तो इन सभी को उन्होंने हाई एडमिनिस्ट्रेटर, इन सबको गवर्नर बना दिया कि कहाँ बार्बर था, कहाँ गार्डनर था, और वहां से उनको क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। ठीक है, कि वो उनके स्लेव हैं, किंग के ऊपर डिपेंडेंट हैं, और किंग को लगता है कि ये मेरे लिए लॉयल हैं, ये मेरे साथ धोखा नहीं करेंगे, ठीक है, ये मैं जो कहूंगा वो मेरी बात मानेंगे, तो मेरी तरफ पूरे लॉयल रहेंगे, और ऊपर से उनको ट्रेनिंग भी मिली हुई है, ट्रेंड भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह कई बार वो लो कास्ट या हम्बल बर्थ के लोगों को भी इन ऊंची पोस्ट गवर्नर जनरल बना देते थे। ठीक है, अब इन सभी चीजों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे आई? ठीक है, अब यहां से, अब ये तो हो गया ना कि उन्होंने डिफरेंट गवर्नर जनरल अपॉइंट कर दिए। अब इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मींस, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर है एक पार्टी का, फिर दूसरी पार्टी के उसने, अभी तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो हम इलेक्शन लड़ते ना, पहले तो इलेक्शन होते नहीं थे। ठीक है, राजा की हम बात कर लेते हैं। तो एक राजा है, ठीक है, उस राजा ने अपना गवर्नर, जैसे इसने अपना गवर्नर बना दिया, ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद खलजी का रूलर आया, उसने अपना गवर्नर बना दिया। तो जो पहले का गवर्नर था और ये गवर्नर है, इन दोनों के बीच में भी आपस में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वहां पे डिस्प्यूट्स हो गए, क्योंकि जो ये बंदागन होते थे, ये स्लेव्स होते थे, ये किसके प्रति लॉयल हैं? सिर्फ अपने ही किंग के, जो उनका सुल्तान है सिर्फ उसके प्रति लॉयल होते थे, बाकी किसी दूसरे के प्रति नहीं। The slaves and clients, they were loyal to their masters and patrons, not to their hires. ठीक है, जैसे अगर इल्तुतमिश ने गवर्नर अपॉइंट किया है, तो जो इल्तुतमिश का बेटा है वो उसके लिए लॉयल नहीं होंगे। ठीक है, इल्तुतमिश की, जैसे हमने कहा कि बेटी रजिया सुल्तान बनी थी, तो वो रजिया के लिए लॉयल नहीं थे, वो सिर्फ अपने राजा के लिए ही लॉयल थे। ठीक है, उसके लिए, मतलब उसी के लिए वो अच्छी तरह ऑनेस्ट थे। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो भी ये बंदागन स्लेव थे, देवर लॉयल टू देयर मास्टर ओनली, अपने ही जो उनका मास्टर था उसके लिए लॉयल थे। अब नाउ न्यू सुल्तान बन गया, नया सुल्तान बन गया, उसने नया गवर्नर अपॉइंट कर लिया। ठीक है, सो न्यू सुल्तान हैड न्यू सर्वेंट्स, so as a result accession of new monarch often saw conflict between old and new nobility. तो इसी तरह जब भी एक नया राजा बनता था, जब भी एक राजा से दूसरा राजा बनता था, तो हमेशा वहां पे हमें कॉन्फ्लिक्ट मिलते थे कि पहला राजा था जो उसके गवर्नर थे, फिर नया राजा आया, उसने नया गवर्नर बना दिया, उन सबके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े, फाइट चलती थी। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंस्टेबिलिटी, तो इससे क्या होता था, इंस्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होती कि एक बनी रहती है। ठीक है, कि एक राजा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ठीक है, एक गवर्नर, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा गवर्नर, तो ये स्टेबिलिटी नहीं थी, इंस्टेबिलिटी थी। जैसे हमने कहा कि रजिया सुल्तान को नोबल्स ने आपस में कॉन्स्पिरेसी रच के मरवा भी दिया था। ठीक है, तो वो इंस्टेबिलिटी थी, वो रजिया सुल्तान अच्छे से रूल भी नहीं कर पाई थी, है ना। रजिया सुल्तान को जब राजा बनाया गया था, सुल्तान बनाया गया था, तो नोबल्स ने उसको रूल ही नहीं करने दिया। उन्होंने क्या किया, आपस में कॉन्स्पिरेसी रच के उसको सिर्फ 4 साल तक रूल किया। तो वो क्या था, इंस्टेबिलिटी थी, एक पर्सन जो रूल कर रहा है उसको रूल ही नहीं करने दे रहे वो, ठीक है, उसका रूल एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, वो क्रिएट हो गई थी। एंड पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय दिल्ली सुल्तान was shocked by many elites and authors of Persian Tawariq. जो पर्सियन हमें त्वारीख्स मिलती हैं उसमें लिखा गया है, डिफरेंट ऑथर्स ने ये बताया है कि कई बार जैसे हम कहते हैं कि उसने भी अभी हमने जैसे रजिया की बात की, तो रजिया की बात में भी
जो उस रजिया ऑथर था मिनहाज सिराज, तो मिनहाज सिराज ने भी लिखा था कि दिल्ली सुल्तान की ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने एक वुमेन को हमारे ऊपर रूल करने के लिए बिठा दिया है ना। तो रजिया सुल्तान को भी क्या था, तो जो तारीख हमें मिलती है तो तारीख में भी ये जो इंफॉर्मेशन है कि जो ऑथर्स हैं वो दिल्ली सुल्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं कि उन्होंने एक तो वो तो रजिया सुल्तान की बात होगी ना, इसी तरह दूसरे जो ऑथर्स थे उन्होंने लिखा था कि वो इन लो कास्ट, कई बार ये लो कास्ट भी होते थे, कि इन लो कास्ट के लोगों को वो हमारे ऊपर गवर्नर बना रहे हैं, वो किसी ऊंची फैमिली के या रिच फैमिली के पर्सन को क्यों नहीं ले रहे, ठीक है, जैसे किसी गार्डनर को बना दिया, किसी बार्बर को बना दिया, तो वो इनको क्यों बना रहे हैं, वो किसी रिच फैमिली के पर्सन्स को क्यों नहीं ले रहे गवर्नर बनाने के लिए। तो इस तरह भी कई ऑथर्स ने अगेंस्ट क्रिटिसाइज किया है इस चीज को, ठीक है। टिल दिस और पॉइंट्स आर क्लियर? हाँ जी, यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर, देन वी विल मूव फर्दर। ओके गुड। सो जैसे हमने की कि पहले के सुल्तान वो क्या करते थे, अपने बंदागन्स को, अपने स्लेव्स को, क्लाइंट्स को गवर्नर बना देते थे। अब खलजी और तुगलक, जो खलजी और तुगलक थे वो क्या करते थे, वो भी बंदागन्स को ही बनाते थे, लेकिन वो बंदागन्स क्या होते थे, मिलिट्री कमांडर्स होते थे, ठीक है। ये कौन होते थे, ये मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है। तो मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिनको कि वो गवर्नर्स बनाते थे, ठीक है। जो गवर्नर्स थे उनको वो मिलिट्री कमांडर, मतलब उनके पास पूरी मिलिट्री की ट्रेनिंग दी होती थी उनको अलग अलग टेरिटरी का, कि किसी मिलिट्री कमांडर को किसी अलग टेरिटरी का गवर्नर बना दिया, और उनको क्या कहा जाता था, मिलिट्री कमांडर को तो बना दिया, ठीक है, अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर्स ऑफ वेरियस, जो उनकी टेरिटरीज थी उनका बनाते। सो लाइक अर्लियर सुल्तान, जैसे अर्लियर सुल्तान पहले अपने बंदागन्स को अपॉइंट करते थे, खलजी और तुगलक, ठीक है। यहाँ पे जो खलजी और तुगलक हैं, और खलजी और तुगलक ने भी अपने बंदागन्स को ही अपॉइंट किया, वो क्या होते थे, वो मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है, मिलिट्री कमांडर्स होते थे। मिलिट्री कमांडर्स को वो एक टेरिटरी देते थे कि नाउ यू आर द गवर्नर ऑफ दिस टेरिटरी, कि अब आप इस टेरिटरी के गवर्नर हो, इस टेरिटरी को संभालो, ठीक है। अब कैसे, अब वो जो टेरिटरी उनको दी जाती थी उस टेरिटरी को कहा था इक्ता, और इनको क्या कहा जाता था, इक्तादार, ठीक है, इनको कहा जाता था इक्तादार और मुक्ति, इक्तादार और मुक्ति कहा जाता था इन मिलिट्री कमांडर्स को, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं कि हु वाज इक्तादार, हु वाज मुक्ति, और इक्ता क्या थी, ठीक है। सो इक्तादार कौन था, मिलिट्री कमांडर ही था, हु वाज अपॉइंटेड बाय सुल्तान, ठीक है, टू गवर्न टेरिटरी दैट इज गिवन बाय सुल्तान। और वो जो टेरिटरी उनको दी जाती थी वो क्या थी, इक्ता, जो टेरिटरी दी गई है जिसके ऊपर कि वे गवर्नर बनेंगे, तो गवर्नर किसके होंगे, वो इक्ता के, ठीक है। इक्ता लैंड है, इक्ता लैंड है जिसके वो गवर्नर हैं, और उनको क्या कहा जा रहा है, इक्तादार, ठीक है। सो दीज लैंड, जिनकी लैंड की उनको गवर्नर बनाया गया है, उस लैंड को कहा गया इक्ता, और उनके होल्डर्स जो वहां पर गवर्नर हैं उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया इक्तादार। मिलिट्री कमांडर्स जो थे, गवर्नर थे, उनको इक्तादार कहा गया, और जो लैंड थी उसको इक्ता कहा गया जहां के कि वो गवर्नर्स हैं। क्लियर? सो ड्यूटी ऑफ मुक्ति, अब ये जो मुक्ति बन गए हैं, ये जो इक्तादार बन गए हैं, इनका काम क्या है, ठीक है। जो राजा ने इनको काम दिया था दैट वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स, उनका काम था, जैसे हमने देखा ना कि सुल्तान अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहा था टू द साउथ, कितने एरियाज पे उसने मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए, तो उन मिलिट्री एक्सपेडिशंस के लिए उसको मिलिट्री चाहिए थी,
और ये जो इक्तादार थे उन्होंने अपनी मिलिट्री मेंटेन करनी थी, ठीक है, पूरे मिलिट्री को, और जो भी अपने एरिया में जो एरिया इक्ता उनको मिली है उसका लॉ एंड ऑर्डर, ताकि वहां पे कोई भी आपस में लोग लड़े झगड़े नहीं, और जो भी मिलिट्री आगे हमने कंपेन करनी है उसको भी देखना है, अपने एरिया के लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है, ठीक है, और वहां से रेवेन्यू भी कलेक्ट करना है। क्लियर? सो टिल ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खलजी एंड तुगलक, who was appointed as governor, such as Iltutmish, he appointed Bandagan, his slave, as governor. In the same way, Khalji and Tughlaq, they also continued the same, appointing Bandagan as governor, but they were appointing military commanders. They were also military trained, उनको पूरी training मिली होती थी, ठीक है, and they were called Iqtadar or Muktis, and whatever the area that was under the control of Iqtadar, he was called, that land was called Mukti, उस land को मुक्ति कहा जाता था। Clear? So we will continue this discussion on this administration tomorrow, ठीक है? So please read all this topic thoroughly from your book. Okay, if there is any doubt, please let me know. Yes, political instability. Political instability, जैसे हमने कहा कि अब इस राजा ने इसको गवर्नर अपॉइंट किया है, ठीक है, दूसरा राजा आया उसने इसको गवर्नर बना दिया, तो ये पहले वाले गवर्नर और दूसरे वाले गवर्नर क्या होंगे आपस में, तो वो उनको अपना राजा मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, तो उसके बीच में आपस में फाइट वगैरह होनी शुरू हो गई, आपस में एक दूसरे के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू एज माई गवर्नर, कि आप गवर्नर नहीं, मैं तो यहाँ का गवर्नर मैं हूँ, तो इस तरह की आपस में फाइट होनी शुरू हो गई, तो जिससे कि पॉलिटिकल होता है कि जो कि राजा से रिलेटेड है, राजा से रिलेटेड है, एक चीज आराम से चल रही है, एक चीज के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसका मतलब वहां पे इंस्टेबिलिटी है, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं है। क्लियर? ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड रीड द चैप्टर थॉरली।